جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آج لاہور وزٹ تھا۔ لاہور وزٹ کے دوران انہوں نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر مختلف جو ہے وہ میٹنگز کی، جس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات شامل ہے، اور خاص طور کے اوپر وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے قیمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس کیا، جس کے اندر جو پنجاب حکومت کی جانب سے جو ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے ہیں قیمتوں کو کم کرنے کے حوالے سے، اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو بریفنگ جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص طور کے اوپر یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جو مارکیٹ کمیٹیز ہیں جہاں پر ہماری روزمرہ کی ایسی اشیاء خورد و نوش جہاں آتی ہیں، چاہے وہ ہماری سبزی منڈی ہیں یا ہماری غلہ منڈیاں ہیں، وہاں پر خاص طور کے اوپر جو انتظامیہ ہے وہاں پر جو بولی ہوتی ہے اس کے اوپر خاص طور کے اوپر جو ہے وہ جائزہ رکھیں۔ کسی کو بھی ایک خاص حد سے زیادہ جو کہ ایک جائز منافع ہے، اس کے علاوہ اگر کسی جگہ کے اوپر ناجائز منافع خوری گراں فروشی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ فوری طور کے اوپر کارروائی کی جائے، اور کسی صورت بھی جو ہے وہاں پر اس کے اوپر کسی قسم کی جو غفلت ہے وہ جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب حکومت پہلے ہی جو گندم ہے سرکاری گوداموں سے وہ جاری کر چکی ہے، اور پنجاب میں جو 20 کلو آٹے کا تھیلا ہے جو سرکاری کوٹے سے جو گندم ملوں کو جاری کی جاتی ہے وہ 1100 روپے کے اوپر فروخت ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جو شوگر ملز کے اندر جو گنے کی کرشنگ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ 1 نومبر سے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور ابھی تک کی جو ابتدائی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پچھلے سال کے بنسبت اس سال گنا جو ہے وہ 25% گنے کی جو فصل ہے وہ زیادہ ہے، جس سے چینی کی پیداوار میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور اس سے ہماری جو مارکیٹ کے ریٹس ہیں وہ نیچے آئیں گے، اور اس سے عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ اور آپ اگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا بھی دیکھیں تو پہلے ہی جب ہم نے امپورٹڈ چینی بھی مارکیٹ کے اندر جب لائے تو اس سے بھی چینی کی قیمتوں میں مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہوئی، اور جیسے ہی کرشنگ کا سیزن آغاز ہوگا قیمتوں میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہمارا فوڈ سپورٹ پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں، وہ سپورٹ پروگرام ہمارا آئندہ نومبر کے اندر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جس سے پنجاب کے اور پاکستان کے بہت بڑے خاندانوں کو جو ہے جن کی تعداد میں سمجھتا ہوں کہ 12 ملین سے زائد ہوگی، ان کو جو ہے وہ ہم سپورٹ فراہم کرنے جا رہے ہیں، جو روزمرہ کی ان کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جس میں گھی، دالیں، آٹا، چینی، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ جو ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے، جو محدود وسائل والا طبقہ ہے، اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے جو ہمارا ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو پروگریس ہے اس کا بھی وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ جائزہ لیا، اور دسمبر کے آخر میں پنجاب سے جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ ابھی ساہیوال ڈویژن اور ڈی جی خان ڈویژن کی ساری آبادیوں کو پہلے ہی مل چکا ہوا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ دسمبر کے آخر میں جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، جو کہ پنجاب کی سارے خاندانوں کو ہیلتھ کور جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے خاص طور کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے عثمان بزدار صاحب نے 60 ارب روپیہ انہوں نے اپنے صوبائی بجٹ کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے تمام جو میکنزم ہے، جو انتظامات ہیں، اس کے اوپر ان کا کام ہو رہا ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا کوئی پیارا، کسی کا والد، کسی کا کوئی باپ، کسی کی بہن، کسی کا کوئی بیٹا، کسی کی کوئی والدہ علاج نہ ہونے کی صورت میں یا پیسے نہ ہونے کی صورت سے علاج نہ کروا سکیں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست خود آگے آ رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر تو ساری آبادی کو ہیلتھ کارڈ مل چکا ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ تعریف اب دنیا کے عالمی جریدے بھی کر رہے ہیں۔ کل بھی ایک برطانوی اخبار جو ٹیلی گراف ہے، اس نے جو پاکستان کا جو ہیلتھ کارڈ پروگرام ہے جو کہ خیبر پختونخوا کی ساری آبادی کو ملا ہے، اس کی انہوں نے جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے کسان کارڈ جو کسانوں کے لیے لے کر آئے ہیں، اور جو مہنگائی ہے اس کی آپ کو وجوہات معلوم ہیں کہ دنیا کے اندر کووڈ کے بعد پوری دنیا کے اندر 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، یہ ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ بلومبرگ جو ہے وہ ایک دنیا کا مانا تانا جو ہے وہ بزنس کا جو ہے وہ جریدہ ہے، وہ بھی اس حوالے سے اس نے بھی بتایا مہنگائی کا انڈیکس بہت اوپر گیا ہے۔
ख़ास तौर के ऊपर अगर आप चाइना में देखें तो वहाँ पर जो उनकी प्रोड्यूसर प्राइसेस हैं उसके अंदर 10.5% जो है इजाफा हुआ, और 26 साल प्रोड्यूसर प्राइसेस का चाइना के अंदर रिकॉर्ड टूट गया है। इसी तरीके से जर्मनी के अंदर 50 साल प्रोड्यूसर प्राइसेस का रिकॉर्ड टूटा है। इसी तरीके से आप यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन सामने आई है, बरतानिया में इन्फ्लेशन सामने आई है। पूरी दुनिया जो है वो खाने पीने की अशिया की कीमतों से मुतासर हुई है। आप पेट्रोलियम की वो कीमतें जो पिछले साल $40 फ़ी बैरल पे थी, 100% इजाफा हो गया, $85 फ़ी बैरल के ऊपर पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत ने क्या किया, हमने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर अपने टैक्सेस को कम किया। आज पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन फ़ी लीटर जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो कि सेल्स टैक्स 8.5 रुपये के करीब है, ₹5.64 के करीब पेट्रोलियम लेवी जो कम तरीन है। जो इसहाक डार कानून बना के गए थे कि आप 30 रुपये तक मैक्सिमम पेट्रोलियम लेवी ले सकते हैं, हम पेट्रोलियम लेवी भी कम ले रहे हैं। और शायद खाकान अब्बासी को ये बात एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर मानना पड़ गई कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हुकूमत अगर पूरी पेट्रोलियम लेवी लगा दे, सेल टैक्स लगा दे, तो पेट्रोल जो है वो 160 रुपये पे पहुँच जाएगा। तो अब भी हम खित्ते में जो है दुनिया में बहुत सारे ममालिक से पेट्रोलियम की कीमतों में हम कम हैं। खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पकाते हैं उसकी कीमतों में भी 110% इजाफा हुआ। $500 पर टन वाला जो घी है वो आपका $1200 $1300 के ऊपर पहुंच गया। उसकी कीमतों में भी पाकिस्तान में कमी लाने के लिए हमने जो घी मिल एसोसिएशन है उसके साथ हमारी टीम काम कर रही है, और हम अपने टैक्सेस में कमी करके 40 से 45 रुपये किलो आवाम को जो है उसके अंदर जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसने 2020 जनवरी से ये सितंबर 2021 तक 34 अरब रुपया रिकॉर्ड सब्सिडी हमने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर दी है। फिर ये हमारे पर तनकीद करें कि महंगाई हो गई, तो मैं इनसे ये पूछता हूँ, ये कौन सी दूध और शहद की नहरें जो है वो यहाँ पर बहा के गए थे। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल से ज़राअत के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। नवाज शरीफ, जरदारी, इन सब की हुकूमतें रहीं, इन्होंने क्या तवज्जो दी? इनकी तवज्जो तो जाली अकाउंटों पर, पापड़ वालों पे, फलूदे वालों के ऊपर थी, या बैरून मुल्क फ्लैट्स बनाने के ऊपर थी। आज इमरान खान आए हैं जिन्होंने आके ज़राअत पे तवज्जो दी, और आप देखें पिछले साल की बनिस्बत अभी जो हमारी खरीफ की जो हमारी फसल आ रही है, इसमें गन्ने की फसल है 25% इजाफा इसमें हो चुका है। आपकी मकई की फसल में इतलात के मुताबिक 18% इजाफा हुआ है। हमारी चावल की फसल के अंदर 18% इजाफा, और कॉटन जो आपको पता है कि हमारी डायरेक्ट टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट के साथ मुंसलिक है, पाकिस्तान की अहम ज़रूरत है, जो पिछले साल 5.7 मिलियन बेल्स के ऊपर थी, आज वो 9.5 मिलियन बेल्स को क्रॉस करके 60% तकरीबन उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ास तवज्जो दी है ज़राअत के ऊपर। हमारा यूरिया 1700-1800 रुपये में बिक रहा है, हमने फैसिलिटेट किया, गैस के ऊपर सब्सिडी दी। दुनिया के अंदर वही यूरिया का रेट अगर आप इंपोर्ट करने जाएं तो 7,000-8,000 के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान आज भी उसमें खुद कफ़ील है, हमारे किसान को वो सस्ता मिल रहा है। दुनिया से 5,000 रुपये जो है वो यहाँ पर कीमतें कम हैं। तो हमने ज़राअत के ऊपर भी काम किया, और हमने मुल्क की बरामदात बढ़ाने पे भी काम किया। कहते हैं जी मैशियत नहीं चल रही। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपको याद है जो इसहाक डार मैशियत छोड़ के गए थे? मुल्क की एक्सपोर्ट्स $24 अरब के ऊपर खड़ी थी, करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब के ऊपर खड़ा था। हमारी जो तरसीलात ज़र थे नून लीग के दौर में वो $18 अरब के ऊपर मौजूद थे। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट जो हैं वो $1 अरब से कम थी। ये 2018 का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल 25.4 बिलियन के ऊपर थी, और उसमें सर्विसेज ऐड कर दें तो ये $31 अरब के ऊपर पहुँच जाती हैं। इसके अलावा हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो 29.5 अरब के ऊपर गई। और अभी अगर मैं आपके सामने फ़िगर्स रखूं पिछले 3 महीने की अपनी मैशियत के, तो हमारी जो तरसीलात ज़र हैं वो $8 अरब के ऊपर मौजूद हैं 3 माह के अंदर। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारी $7 अरब के ऊपर मौजूद हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पहले 2 माह के अंदर 7.5% इजाफा हुआ। अगस्त के अंदर जो है वो 12.5% इजाफा हुआ। जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन से जो है वो ज़्यादा है, और वो 1395 अरब, यानी कि हमारा जो अपना टारगेट था उस टारगेट से भी जो है वो हमारी उसमें ज़्यादा है हमारी जो
टैक्स कलेक्शन है इस हवाले से, तो मैं सिर्फ आपके सामने ये हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ कि हमने फ़ॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर बेशुमार इजाफ़ा किया। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को 28% बढ़ाया पिछले साल की बनिस्बत। FBR में हमने 38% जो है वो बढ़ाया है। एक्सपोर्ट्स में 27.5% हमारा इजाफ़ा हुआ है और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 28% हमारा उसके अंदर जो है वो इजाफ़ा हुआ है। तो ये वो हमारी मैशियत के इशारिये हैं और जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। हम मुल्क को एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर लेके जा रहे हैं। इनकी तरह क्रेडिट कार्ड मांगे तांगे की ग्रोथ नहीं थी कि उधार ले लेकर कर्ज ले लेकर आप कहें कि आपकी तरक्की हो गई है। तो तरक्की वो है जो आपकी पैदावार बढ़ा के हो, आपकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के हो। तो मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क को सही सिमत की तरफ लेके जा रहे हैं। मुश्किल वक्त आया हमारी सैलरीड क्लास के ऊपर, हमारा जो कम वसाइल वाला तबका है, आलमी सतह पे महंगाई बढ़ी है, उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है। हमने उनके लिए फौरी तौर के ऊपर, जिस तरह कोरोना के अंदर आपके इल्म में होगा कि पूरा पैकेज हुकूमत लेकर आई थी, उसमें हमने कैश फराहम भी किया था, उसके अंदर हमने इंडस्ट्री को भी सहारा दिया था। इसी तरीके से इस मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फौरी तौर के ऊपर फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को कैश जो है कार्ड्स के ज़रिए उनको राशन के हवाले से जो है सब्सिडी फराहम करेंगे। तो ये वो इक़दामात हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का जो एहतजाज आज ये अपना एहतजाज कर रहे हैं, ये किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज इस बात पे ये कर रहे हैं कि ये बेरोज़गार हैं, ये सियासी बेरोज़गारों का टोला है जिनका आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। कोई एहतजाज इन्होंने नहीं किया। 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोड शेडिंग की इंतहा थी, महंगाई की इंतहा थी, वहाँ पर आटे का बहरान था, नून लीग ने कोई एहतजाज नहीं किया था। फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 13 से 18 नून लीग की हुकूमत में बदतरीन करप्शन हुई, बदतरीन जो है वो गवर्नेंस की हालत थी। पीपल्स पार्टी ने कोई एहतजाज नहीं किया और फजलुर रहमान नून लीग की कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा थे। क्यों? इमरान खान ने ना खुद खाना है, ना इनको खाने देना है, ना इनको एहतसाब के मामले में इनको कोई NRO मिलना है। लिहाजा ये इधर उधर की टामक टोइयाँ जो है वो मारते रहते हैं। तो मैं इनको जो सियासी बेरोज़गारों से जो है वो तशबीह देता हूँ। इन्होंने जो एहतजाज करने हैं, जुलूस करने हैं, ये अपना शौक़ पूरा कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो आवाम का एहसास है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को है। उन्होंने ही आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करना है, जिसके लिए हम ये इक़दामात लें। पेट्रोल, बिजली, गैस, दालें, चीनी सब कुछ महंगा हो गया। तो जब ये महंगे होते हैं पेट्रोल और बिजली, तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़ जाती है। प्राइम मिनिस्टर जब भी आते हैं महंगाई पर इजलास करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी करते हैं, और रोज इजलासों तक रहता है। अमली तौर पर कुछ ऐसा नहीं आ रहा, गरीब तो मर गया। नहीं, देखें, जहाँ तक रह गई बात अमली तौर के ऊपर आपने बात की, जब मैंने आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं वो इंतज़ामिया का काम है, उस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो अमली तौर पे इक़दामात हैं, अमली तौर के ऊपर जो हम फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, उसकी हमने तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली। डेटा हमारे पास मौजूद है, उसका आगाज़ हम नवंबर से जो है वो करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा, उसके अंदर जो है वो सूबा पंजाब शामिल हो चुके हैं। हमने जो है वो सिंध हुकूमत को भी ये कहा है कि 13 साल से आपकी भी हुकूमत है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर अगर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 का है, तो सिंध में, कराची में वो 1500 रुपये में क्यों बिक रहा है? आप भी इस फूड सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बने। बलूचिस्तान हुकूमत को भी हमने कहा है। तो आप ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ी जो हमारा तबका है जिसके ऊपर ये असर कर रही है ये चीज़, उसको हम ये सपोर्ट फराहम करेंगे। और इसके अलावा जो आपने बात की बिजली के ऊपर, मैं इन लोगों को कौमी मुजरम कहता हूँ। कौमी मुजरम इस वजह से कहता हूँ कि इस मुल्क में 1967 के बाद कोई डैम नहीं बना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 10 डैम बना रहे हैं। 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आइंदा आने वाले सालों में आएगी, जो कि सस्ती बिजली होगी। उससे आपकी एनर्जी मिक्स ठीक होगा, बिजली के रेट्स नीचे आएंगे। इसके अलावा बिजली बनाएं या ना बनाएं, ये मंतक मैंने आज तक नहीं सुनी कि बिजली बनाओ ना बनाओ, बिजली ख़रीदो ना ख़रीदो, आपने उसका किराया देना है कैपेसिटी पेमेंट की मद में। 800 अरब रुपये आपने आज अदा करना है। 2023 में वो 1300 अरब है, 2030 में वो 2500 अरब हो जाएगा। जो माहिदे इन्होंने किए हैं वो माहिदे हमारे आड़े आए हुए हैं। लिहाजा ये वो आवाम के गले में फंदा फिट करके गए हैं, जिसको इमरान खान उस फंदे से आवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फरमाएगा कि अभी वज़ीर आला सिंध ने जो है वो टॉक किया और उन्होंने कहा है कि महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि गधे बैठे हुए हैं जिनको इसका एहसास नहीं है। देखें बात यह है कि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो सिर्फ टॉक ही करते हैं,
टॉक के अलावा जो है वो कोई अमल नहीं करते, और टॉक करते हैं। मैं उनको कहूँगा ये टॉक और कैट वॉक ये दोनों छोड़ें और सिंध को ग्रां फरोशों से बचाएं, सिंध को टैंकर माफिया से बचाएं, सिंध के लोगों को वो जो सरकारी गोदामों में 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है, वो 18वीं तरमीम के बाद ये कीमतें हैंडल करना ये सूबों का काम है। आप उनको हैंडल करें, क्यों नहीं हैंडल आप करते? वहाँ पर पिछले साल इनके गोदामों में 14 अरब रुपए की गंदम चोरी हो गई, और आपको याद है कि इन्होंने कहा ये चूहे खा गए। ये जो चूहे बिलावल हाउस के अंदर बैठे हुए हैं जिनके पेट नहीं भर रहे, इस गंदम को खा खा के वो गंदम सिंध की आवाम को दें ताकि वहाँ भी लोगों को जो है वो रिलीफ मिले। अच्छा फर्ज साहब ये बताइएगा जितनी मर्जी आप काबिलें दे लें महंगाई पर, ना अभी कोई नई फसल आई है, ना कोई ऐसी चीज़ हुई है इम्पोर्ट ऐसी हुई है कि जिसे गवर्नमेंट को खरीदना पड़ रहा हो। असल आपका इशू है गवर्नेंस का। गवर्नेंस पर आपने वो पॉलिसी ली है कि अगर बाज़ार पे आप काबू नहीं कर सकते तो हम आपको सब्सिडाइज चीज़ दे देते हैं, बाज़ार को छोड़ दें। पीटीआई गवर्नमेंट अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को काबू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स कब उठाएगी? देखें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं वो हमने उठाए हैं। मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें, आपने कहा कि अभी बाज़ार में फसलें नहीं आई, ये आपका जो गन्ने की फसल है आपकी तैयार है, ये आप अक्टूबर एंड के ऊपर मौजूद है, नवंबर के ऊपर जो है उसकी क्रशिंग शुरू हो जाएगी। हमने पाबंद बनाया है तमाम शुगर मिल्स को इस हवाले से। दूसरा बुनियादी चीज़ ये है कि आपकी प्याज की फसल देख लें, वो हमारे पास इजाफी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों के अंदर कमी भी आई है। दालें हम 70% इम्पोर्ट करते हैं। पहली बार पाकिस्तान मूंग की दाल भी इम्पोर्ट करता था, मूंग की दाल के अंदर भी जो है वो हम सरप्लस हुए हैं। 22 करोड़ एकड़ ज़मीन पाकिस्तान के पास मौजूद है, 5 करोड़ एकड़ ज़मीन काबिल काश्त है। ये किसी को पहले ख्याल नहीं आया, ये इमरान खान को ख्याल आ रहा है। ऑलिव्स इस मुल्क के अंदर जो उसकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं, पोठोहार में, आपकी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में 1 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने उसके लिए रखा हुआ है। उसकी अफजाइश जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑलिव्स की वो पैदावार को बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को फूड डेफिसिट कंट्री से ग़ज़ाई खुद कफ़ील मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे ये जो आइंदा हमारी गंदम की फसल भी आएगी मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, उसके अंदर भी इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड इजाफा नज़र आएगा। और पाकिस्तान जो है वो फूड इंपोर्ट से जो है वो फूड सफिशेंट कंट्री बन जाएगा। और आपको ये बात भी ख्याल रखनी चाहिए कि सालाना हमारी आबादी में 2.5% इजाफा हो रहा है। 50 से 60 लाख लोग जो हैं वो सालाना हमारी आबादी के अंदर इजाफा हो रहा है। उनकी ज़रूरियात भी हैं, उनको घर भी चाहिए, उनको खाने पीने की अशिया भी चाहिए। तो हुकूमत इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है। हमारा लाहा अमल बड़ा वाज़ेह है और हम आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फुल अपनी जो है वो तमाम तवानाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फारूक ये बताएं कि आज पीडीएम ने, देखिए, जाम कमाल साहब का मामला जो है वो बाप पार्टी का एक इंटरनल मैटर है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको जो है वो सॉर्ट आउट करना है। तो उसके ऊपर जो उनकी पार्टी फैसला मुलाकात करेगी। तो आपकी हो गई, अब नोटिफिकेशन का इंतजार है, वो कब तक आ पाएगा? और बताएं कि पीडीएम ने एक आज जलसा किया है। परवेज लाई भी पंजाब की हुकूमत पे तनकीद करते हैं, उन्होंने डेंगू की परफॉर्मेंस पे भी तनकीद की कि पंजाब हुकूमत जो है डेंगू को खत्म नहीं कर रही। तो क्या आपको यकीन है कि इत्तेहादी जमातें आपके साथ रहेंगी आगे के 2 साल? देखें, जो हमारी जहाँ तक रहेगी बात हमारी इत्तेहादी जमातों की, तो इत्तेहादी जमातों का हमारा इत्तेहाद जो है वो पक्का है और इत्तेहादी जमातों को हम बिल्कुल अपने साथ हमेशा जो है वो साथ लेके चलते हैं। और इत्तेहाद जो है वो उसको किसी किस्म का कोई ख़तरा जो है वो मौजूद नहीं है। जहाँ तक रहेगी बात डेंगू के हवाले से, तो मैं हसन सावर साहब को कहूँगा, आसान को हो गई, अच्छा फर्ज जो साहब मुलाकात तो कल हो गई, फरूक लेकिन साहब, नोटिफिकेशन का इंतजार है। अच्छा। हुकूमत क्यों अपने लिए मुश्किलात हर काम में जिसमें हाथ डालती है वो उनके अच्छा गले में फरूक पड़ साहब, जाता है। इसमें ये ऐड कर ले कि नोटिफिकेशन जितनी हो काबी गई, इसमें या ये किस चीज़ का इंतजार है? फरूक साहब, ये- इसमें एक ये ये मैं- ऐड कर लीजिएगा, जो- देखें- इसमें ये ऐड कर लीजिएगा देखें, कि बात ये है, वो कहते हैं मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि हर मुश्किल आसान हो गई। तो ये वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो फैसला करना है, मुश्किल अपने लिए ले ली। वज़ीर आज़म साहब ने फैसला करना है और बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। अच्छा फारूक ये बता दें कि आज पीडीएम ने जो है वह एहतजाज किया है और उनका ये कहना है कि हुकूमत आवाम के साथ जो वादे किए वो कोई वादा कौन सी पूरा नहीं पीडीएम ने किया। किया? पीडीएम शहबाज शरीफ ने या पीडीएम मरीम वो नवाज अब ने? हुकूमत, वो कहते हैं कि हुकूमत अब घर ही चली जाए क्योंकि आवाम का सैलाब अब उन्हें जो है वो घर वापस भेज देगा। क्या कहते हैं? ये करप्शन का सैलाब है, ये लूट मार का सैलाब है। इसका जो है वो आवाम के सैलाब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम लाहौर शहर में मौजूद हैं। लाहौर शहर में दिसंबर 2020 में हमें ये कहा गया था कि आर या पार,
आर और पार वाले अब जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौकों पे जो है वो 100 50 लोगों के साथ जो है वो खवार हो रहे हैं। तो लिहाजा इनको मशवरा ये है कि ये पहले तहरीक जो इन्होंने अपने ख़िलाफ़ शुरू की हुई है ना, मरीम सफदर ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ ने मरीम सफदर के ख़िलाफ़, उस तहरीक को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि पता चले कि पार्टी का सदर बड़ा होता है या पार्टी की नायब सदर बड़ी होती है। अच्छा, ये फारूक साहब ये बताइएगा कि जितनी तेज़ी हुकूमत ने चेयरमैन नैब का आर्डीनेंस लाने में या अपने हवारियों को NRO देने में लगाई, उतनी तेज़ी नोटिफिकेशन में इमरान खान क्यों नहीं लगा रहे? अगर कोई वजह नहीं है इसके पीछे जो मरीम साहिबा भी बात करती हैं। आपके सवाल में काफ़ी तेज़ी है सवाल में काफ़ी तेज़ी है आपकी, बाकी तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक होंगी। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है कि इस पर महंगाई पे जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मगर ये है कि एक तबका है जो इस चीज़ को समझता है, बट आवाम के जो आम आदमी का मसला है, और जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा आवाम की बात करते हैं, उनका मसला ये वो ये इस बात को नहीं समझने को था, और वाकई जो है महंगाई, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे आगे, तो उन तक ये पैगाम जाए कि ये महंगाई कंट्रोल हो पाएगी। देखें, आवाम बिल्कुल देखें बड़ी बुनियादी चीज़ है जो आपने बात की। देखें, ये यकीनन जो है वो आवाम का इशू है और हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल आगाह भी है। हुकूमत इस हवाले से जो है वो इक़दामात भी कर रही है। यही वजह है कि नामसाइद हालात के बावजूद हमें जो इंटरनेशनली आप सिर्फ इस चीज़ को सामने रखें थोड़ा वक्त के लिए कि कोविड ने जो पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस हमने अपनी इंडस्ट्री बंद नहीं होने दी। हमने इसी कोरोना के दौरान जहां लोगों की जीडीपी सुकर गई, भारत की जीडीपी नेगेटिव में, बरतानिया की जीडीपी नेगेटिव के अंदर, बड़े बड़े मुल्कों के जो कर्ज़ों में 13% इजाफा हुआ, हमारा डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो नीचे आया, हमने अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया। उन तमाम चीज़ों के बावजूद जब हमारे ऊपर भी असर आता है महंगाई का आलमी सतह का, तो हमारी कोशिश ये है कि हम उसके ऊपर कम से कम बोझ लोगों पे डालें। यानी पेट्रोलियम की मसनूआत में 100% इजाफा हुआ आलमी सतह पे। हमने जब टैक्सेस कम किए तो ये हुकूमती इक़दाम है, हमने 35% इजाफा किया। इसी तरीके से खुर्दनी तेल की जो कीमतें हम 40 से 50 रुपये कम करने जा रहे हैं, हुकूमत अपना रेवेन्यू कम कर रही है। जिस तरह एक घर चलाने के लिए आमदन चाहिए, तो ये 22 करोड़ का मुल्क भी एक घर की मानंद है। 22 करोड़ लोगों के इस मुल्क को चलाने के लिए भी एक आमदन चाहिए। हुकूमत अपने टैक्सेस में कमी लाकर आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। और सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नवंबर के अवाइल में जो फूड सपोर्ट प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, इससे आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक लोगों को ये जो इंटरनेशनल आलमी सतह पे महंगाई के असरात पाकिस्तान में भी आए हैं, वो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी जो है वो संजीदा भी हैं और उनकी बड़ी वाज़ेह हदायत हैं। डॉक्टर सारिया निश्तर ने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम तैयार किया है और इसमें हमने तमाम सूबों को शामिल होने की दावत दी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, मैंने जैसे पहले कहा, इसके अंदर ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। शेख रशीद साहब तो 2 दिन की छुट्टी पर चले गए मैच देखने, और मुकम्मल तौर पे जैब पे आ गया है। तहरीक लब्बैक तकरीबन 10,000 लोगों के साथ निकली इस्लामाबाद की तरफ, तो मुज़ाकरात क्यों नहीं किए जा रहे? देखें उस हवाले से, शेख रशीद साहब 2 दिन की छुट्टी लेके चले गए, वज़ीर दाखिला कौन है? देखें उस हवाले से जो है हमारी जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए टीम तश्कील दे दी है और वो मुज़ाकराती टीम ने जो है उनके साथ रब्ता भी कायम कर लिया है। और इस हवाले से जैसे ही कोई चीज़ सामने आती है तो हम आपको यकीनन जो है वो उसके ऊपर आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे शेख साहब पहले वक्त मैच वेखेंगे इक़दाम कर रहे हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत गन्ने की फसल 25% ज़्यादा मुतवक्के है। क्रशिंग की सीज़न में चीनी की कीमत में नुमाया कमी होगी। फूड सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लोगों को रिलीफ फराहम करेंगे।